student. Today I'm going to continue or resume our class, the dissolution of partnership. In previous uh, class, we had studied the meaning of dissolution of partnership form. Okay, and the differences also. What is the meaning of dissolution of partnership and dissolution of partnership firm? So far, we had discussed about these 2 points. So you know that there are big difference between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm, right? So as you know, uh, डिसॉल्व मीन्स खत्म हो जाना, वाइंड अप हो जाना। तो यहाँ सिर्फ पार्टनरशिप नहीं है, पार्टनरशिप फर्म। यानी पार्टनरशिप क्या होता है? इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप to carry on the business, and firm is an business enterprise by which name they run their business. Okay, so firm or partnership, these are the two different things. Partnership, partners are only the member of partnership firm. Okay, so agreement made between the partners only, okay, which creates the firm. So here, as per the Indian Partnership Act, it makes a distinction between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. Already in the previous class, I have taught you all people, and now you all are supposed to study the distinction between these two items or these two things from your textbook, and because meeting already I have discussed. And I sorry, I have discussed in the previous year in what condition the partnership firm will be deemed as dissolution of partnership firm. Okay, without court order. Now we have to study point B by order of court. So what are the situations when court gives order or court issues an order to close the partnership form? Okay, so let us see first. Here it is saying that the court may, on an application by a partner, sometimes the partners, because if they are registered firm, so partners write an application to the court to give the order to dissolution of partnership firm under the following circumstances. When partner has become unsound mind, जिसकी माइंड मेंटल स्थिति अच्छी नहीं है, they are not able to make a decision, not to make an agreement, so in that time they give an application to dissolve the firm. Second, when a partner other than partner, एक partner other partner को छोड़ के filling a suit has become permanently incapable of performing his duties as the partner. ठीक है, सो कह रहा है कि जब सारे पार्टनर या कोई एक पार्टनर को छोड़कर सभी पार्टनर, ठीक है, अगर इनकेपेबल हो जाते हैं ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, तो एक ऐसा फाइल कर सूट करके डिसोल्यूशन किया जा सकता है. थर्ड, व्हेन अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर फिलिंग अ सूट willfully or persistently commits breach of partnership agreement. सो जब एक पार्टनर या सभी पार्टनर या कोई भी एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सब पार्टनर, मतलब अगर 3 पार्टनर्स है ए बी सी, तो सभी, या मान लो कि ए को छोड़कर बी और सी, अगर सभी पार्टनर, ठीक है, फाइलिंग करते सूट विलफुल्ली, खुद इच्छा से, या परसिस्टेंटली कमिट्स, या कुछ ऐसा काम करते दैट ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट का उल्लंघन करता है, मतलब पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होता है उसका ब्रीच मीन्स तोड़ना, ब्रेक करना, ठीक है, तो अगर कोई ऐसा करता है तो उस केस में कोर्ट ऑर्डर दे सकता है. सो कह रहे हैं व्हेन अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर्स फिलिंग अ सूट, जब कोई एक पार्टनर या सभी एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सभी पार्टनर जो भी, अगर कोई फाइल सूट करता है इसलिए कि किसी ने मिसकंडक्ट किया है, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट दैट मे हार्म द पार्टनरशिप,
तो कोई भी पार्टनर कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे सकता है, चाहे कोई एक पार्टनर दे, चाहे एक को छोड़कर बाकी सभी पार्टनर दे दें, तो भी अगर इन सारी सिचुएशन में कि अगर किसी का दिमागी स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है, कोई पर्सन इनकैपेबल है, पार्टनरशिप बिजनेस में परफॉर्म नहीं कर सकता, या किसी ने धोखेबाजी की है, मतलब या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, एग्रीमेंट को तोड़ा है जानबूझकर या चाहे भी जैसे, या कुछ ऐसा व्यवहार किया है जिससे पार्टनरशिप बिजनेस को नुकसान हो, तो इन सभी केसेस में कोई भी पार्टनर एक एप्लीकेशन दे सकता है कोर्ट को, इसलिए कि आप ऑर्डर इशू करें बिजनेस को डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, और भी कुछ रीजंस है, आप देख लो। फर्स्ट या फिफ्थ वन, when a partner other than the partner filing a suit as there has transferred the whole of his interest in the firm to a third party। ठीक है, whole of his interest यानी अपना पूरा जो उसका पैसा है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जो उसका होल सोल उसमें स्टेक होल्डर है, वो अपनी जगह पर किसी दूसरे को शिफ्ट कर देता है बिना किसी से पूछे, तो इस केस में भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है एप्लीकेशन देने पर। दूसरा, when the court is satisfied that the firm cannot be carried on except at a loss। अगर कोर्ट को पता चलता है, वो ये वेरीफाई करता है कि सब कुछ देखने के बाद कि ये बिजनेस अब आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता, अगर किया जाएगा तो सिर्फ लॉस होगा और कुछ नहीं, तो इस केस में कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, सो these are the situation when court can issue an order, right? When the court is satisfied that the dissolution is just and equitable due to some other reasons, कुछ अदर रीजन्स से भी होते हैं, तो आप बुक में देख लोगे। आज हम लोग अब पढ़ेंगे कि जब फॉर्म डिसॉल्व होता है, जब पार्टनरशिप बिजनेस डिसॉल्व होता है, सो हाउ टू मेक द अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो जैसे आप लोग एडमिशन चैप्टर पढ़े हो, तो आपको पता है कि जब कोई पार्टनर आता है फॉर्म में, तो हम लोग सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेट करते हैं एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फिर नए पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आता है और गुडविल उसका रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग रीवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ का, फिर जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड फिक्सेशियस एसेट्स होता है उसको हम शेयर करते हैं बिटवीन ओल्ड पार्टनर। ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर हम लोग कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो ये प्रोसेस है, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे एडमिशन में, लेजर के केस में, और जनरल में सारा जनरल एंट्री कर देते हैं। ठीक उसी तरह है, डिसॉल्व होता है, तो इस टाइम हमें कौन कौन सा अकाउंट बनाना होता है ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आप अच्छे से ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, वाह। सो हियर सबसे पहले कह रहा है कि इन ऑर्डर टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन डिसोल्यूशन द फॉलोइंग अकाउंट्स आर ओपन्ड। कौन कौन से अकाउंट ओपन किए जाते हैं, लेट अस सी। ठीक है, तो कह रहा है कि which are given in below। फर्स्ट, जब फॉर्म बंद होता है तो सबसे पहले नंबर पे हम जो अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। अगर लेजर की बात करें तो रियलाइजेशन अकाउंट, नहीं तो जनरल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करके फिर ट्रांसफर करते हैं सब कुछ। दूसरे नंबर पे जो बनाते हैं वो पार्टनर्स लोन अकाउंट, लेकिन पार्टनर्स लोन अकाउंट तभी बनेगा जब पार्टनर्स ने लोन दिया होगा। अगर पार्टनर्स ने लोन नहीं दिया है तो लोन अकाउंट नहीं बनेगा। थर्ड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस इज मस्ट बिकॉज जब बिजनेस क्लोज हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर सभी एसेट लायबिलिटी का पेमेंट करने के बाद फिर पार्टनर्स का पेमेंट करते हैं। तो पहले पार्टनर्स लोन करते हैं और फिर पार्टनर्स के कैपिटल का पेमेंट। आफ्टर दैट कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट बनाने के बाद इसका बैलेंस जीरो आएगा, मीन्स जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। इसका मतलब ये होता है कि हमने सारा हिसाब कर लिया, हमारे पास पैसा नहीं बचा, सब कुछ सही सही हुआ। अगर कैश या बैंक अकाउंट का बैलेंस दोनों साइड टोटल बराबर नहीं आता है तो मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों ने मिस्टेक किया है। ठीक है, तो जितना पैसा आया उतना ही पेमेंट किया जाता है, क्योंकि बिजनेस तो अब रहेगा नहीं,
तो कुछ बचाना है नहीं, सब कुछ क्लोज कर देना है, ठीक है। सो ये यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले कि what are the procedure or the steps we have to take while we dissolve the partnership firm. So done. Shreya, आपने ले लिया? Yes, sir. Okay. So now I am coming to the next slide, and this is very very important, students. So carefully, attentively, you start. First, I am teaching you how to prepare realization account, and first of all, I need to teach you what is the meaning of realization account. As the lateral meaning of realization means something we receive, na we realize. So here you will see uh, a realization account is opened for disposing of all the assets of the firm and making payment to all the creditors. So why do we prepare realization account? For disposing all the assets of the firm and making all the payment to the creditors. Creditors means outside liabilities. ओके, सो रियलाइजेशन अकाउंट में हम सबसे पहले जितना भी हमारे पास एसेट्स होता है जिसको कि मार्केट में सेल किया जा सकता है, सिर्फ वही एसेट ट्रांसफर करेंगे, डिस्पोज करेंगे जिसको कि हम मार्केट में सेल कर सकते हैं, और फिर उससे जो पैसा रियलाइज होगा, जो रिसीव होगा, उसी पैसे से जितने भी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मीन्स क्रेडिटर्स या लोन आप थर्ड पार्टी अदर देन पार्टनर जितने भी होंगे लायबिलिटीज, external liability we can say, is to be paid. Okay, so further it is saying realization account is the nominal account. So mind it, realization account का nature क्या है? It's the nominal account, and the object of such an account is to find out the profit or loss on realization of assets and payments of liabilities. ओके, सो हम इसको बनाते हैं, सबसे पहले एसेट ट्रांसफर करते हैं, लायबिलिटीज ट्रांसफर करते हैं, फिर एसेट्स को सेल करते हैं, सेल करने से जो पैसा मिलता है उससे सभी क्रेडिटर्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं। इसके बाद भी अगर से कुछ पैसा बच जाता है, यानी क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आता है, नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट में इनकम हो गया तो क्रेडिट ज़्यादा आएगा तो प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट को हम यूज़ करेंगे सभी पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटने के लिए, ठीक है। सो कह रहा है टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। सो एंट्रीज इन द रियलाइजेशन अकाउंट आर मेड इन द फॉलोइंग मैनर। जो एंट्रीज किए जाते हैं, ठीक है, जो जर्नल एंट्री होती है वो कैसे की जाती है वो हम सिखाएंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड टेक द एसेस ऑफ ईच कंप्लीट स्लाइड। सो हियर नाउ सी इट इज सेइंग फॉर क्लोजिंग एसेट्स। सबसे पहले हम एसेट्स को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं एसेट लायबिलिटी कुछ भी कर सकते हो, बट सीक्वेंस वी शुड मेंटेन। ओके, we should follow a sequence so that we can do all the things systematically. Okay students, so first it is saying for closing assets accounts. So how to close? As you all people are knowing since class 11, assets always having debit balance. So if any account we want to close, so that if that is debit, so it should be credited to close. तो एसेट कैसे क्लोज होगा? एसेट ऑलवेज डेबिट होता है तो एसेट्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा तो क्लोज हो जाएगा। लेकिन जनरल एंट्री में दो चीजें होती हैं, वन डेबिट एंड अदर वन इज क्रेडिट। तो अगर हम एसेट्स को क्रेडिट कर रहे हैं तो डेबिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को, राइट, क्योंकि हमें डिस्पोज करना है सारा एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके। सो रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हैं और एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और लाइकवाइज हम जब लायबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे तो ठीक रिवर्स होगा। तो सी हियर ऑल एसेट्स ऑफ द फर्म एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तो ध्यान रखना कौन कौन सा एसेट छोड़ के लिखा है मैंने, ऑल एसेट्स है,
लेकिन एक्सेप्ट कैश बिकॉज नो नीड टू रियलाइज कैश, कैश इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ कैश ना, एंड बैंक बैलेंस इज आल्सो नो नीड टू रियलाइज, नो नीड टू सेल। वही एसेट्स ट्रांसफर करेंगे जिसको भी सेल किया जा सकता है और जिससे पैसा मिलने के चांसेस होते हैं। और फिक्शिशियस एसेट्स, इसको भी नहीं ट्रांसफर करेंगे क्योंकि फिक्शिशियस एसेट इज नॉट अ रियल एसेट, इट इज आर्टिफिशियल और बनावटी एसेट्स है। We cannot realize a single rupee from the sale of this kind of assets. Examples, you know, examples, you know. Mic mute करो भाई. Okay. Examples, you people are knowing. Okay. Examples of fictitious asset like preliminary expenses, debit balance of profit and loss account, and advertisement suspense account, deferred revenue expenditure account. These all are fictitious assets. I think you must have remember while I was teaching you the admission, retirement and death. Everywhere you have found the accumulated profit, loss, reserve and fictitious assets. Na? So I'm talking about that. So those assets which cannot be realized are in the form of already in cash. So no need to transfer to or no need to close by transferring into the realization account. Okay, so our transfer to, तो जितने भी एसेट्स हैं इन सारे तीनों एसेट्स को जो मैंने बताया छोड़ करके सारा कुछ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और किस वैल्यू पर? इनके बुक वैल्यू यानी जो इनकी ओरिजिनल वैल्यू है बैलेंस शीट में उस पर। ठीक है, तो कैसे एंट्री होगा बेटा? एंट्री नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट शेयरिंग एंट्री। यस, सो नाउ यू विल सी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। लिखा है ना, एसेट्स हमेशा डेबिट होता है, तो एसेट्स को क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, राइट। तो एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन ध्यान रखना सिर्फ वही एसेट्स ट्रांसफर करेंगे जिसको कि मार्केट में सेल किया जा सकता है, पैसा रियलाइज करने के चांसेस हैं। कौन सा नहीं ट्रांसफर करेंगे? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और फिक्शिशियस एसेट लाइक डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, दीज आर द एसेट्स विल नॉट बी ट्रांसफर्ड। सो डन। अनिरुद्ध, फर्स्ट स्लाइड हो गया? यस सर, डन। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छे से एंट्री याद रखना, एंट्री बहुत जरूरी है। सो एसेट्स तो हो गया। व्हाइल ट्रांसफरिंग द एसेट्स टू दिस अकाउंट द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी kept in mind। तो जब हम एसेट ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट करते हैं, तो हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है ये आप ध्यान दो। ठीक है, सबसे पहले लिखा है यहाँ पर वी ट्रांसफर ओनली, अभी मैंने डिस्कस किया था बेटा, देखो वही चीज आएगा। वी ट्रांसफर ओनली दोज एसेट्स which we can which missing है, those assets which we can be converted into cash are transferred to realization account. Fictitious assets such as debit balance of profit and loss account, advertisement suspense account, etc. are not to be transferred to this account, as we cannot realize a single rupee from the sale of this fictitious assets. So these items should be transferred to partners कैपिटल अकाउंट। ओके, तो जो हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं वो कैपिटल में जाएगा, राइट। नेक्स्ट, अब देखो ट्रांसफर करने की एंट्री नीचे आप चेक करो कि कैसे ट्रांसफर होता है। ये सब जो एडवर्टाइजमेंट और ये सब कहाँ जाता है, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में यू ऑलरेडी नो दिस कि इन एडमिशन चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, रिटायरमेंट, सभी जगह आप पढ़े हो कि अगर डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो क्या करते हो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हो और इन सारे आइटम्स को क्रेडिट करते हो ओल्ड रेशियो में। ठीक है, सो टेक एसएस। अनिरुद्ध, एसएस ले लो फटाफट सभी लोग। कैसे ट्रांसफर करेंगे इन सारी चीजों की जनरल एंट्री समझ में आ गई? डन? यस सर। So now all those provision and reserve are to be transferred to realization account which are connected to assets. एक मिनट, yes, all those provision
and reserves are to be transferred to realization account which are connected to any assets. So देखो बेटा कुछ ये थ्योरी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेट तो ट्रांसफर करने की एंट्री सब लोग सीख चुके हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, और एसेट साइड पे जो फिक्सिशियस एसेट्स था उसको कैपिटल में ले आते हैं, ये दो चीज सीख चुके हो। अब आते हैं हम लोग लायबिलिटीज में। सो लायबिलिटीज में देखो एक एक्सटर्नल लायबिलिटीज होता है और एक इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी में क्या आता है, एक पार्टनर्स का कैपिटल आता है और एक पार्टनर्स के द्वारा दिया गया लोन होता है। लेकिन डिसोल्यूशन में याद रखो कि पार्टनर्स ने जो लोन दिया है वो इंटरनल है, लेकिन अगर पार्टनर के स्पाउस ने लोन दिया है, स्पाउस यानी अगर मिस्टर ए पार्टनर है और उनकी वाइफ ने मिसेज ए ने लोन दिया है तो वो थर्ड पार्टी मानी जाएंगी, वो पार्टनर की तो है नहीं, तो उनका पैसा रियलाइजेशन में ही जाएगा लायबिलिटीज के साथ। लेकिन अगर यही मिस्टर ए जो पार्टनर है वो खुद लोन दिया रहेगा तो उसको रियलाइजेशन में कभी भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से लोन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, सो हम लोग यहाँ थोड़ा सा बात कर ले प्रोविजन और रिजर्व। तो लायबिलिटीज में कैपिटल होता है, पार्टनर्स लोन होता है, लोन अदर देन पार्टनर होता है, कुछ रिजर्व्स होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, थर्ड पार्टी लायबिलिटी होता है लाइक क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सेट्रा। तो इसमें से क्या क्या ट्रांसफर करेंगे, तो देखो बेटा रियलाइजेशन अकाउंट में हम वही लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे जो थर्ड पार्टी को पेबल होता है एक्सटर्नल, बट उसके साथ प्रोविजन और रिजर्व होता है। तो चूंकि आपको पता है कि प्रोविजन और रिजर्व प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ रिजर्व्स और प्रोविजन ऐसे होते हैं जो किसी स्पेशल पर्पस से बनाए होते हैं और जिनके अगेंस्ट बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स रिवील करता है। जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये किससे कनेक्टेड होता है, डेटर से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड किससे कनेक्टेड होता है, इन्वेस्टमेंट से। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किससे कनेक्ट होता है, फिक्स्ड एसेट से। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड अगर दिया है तो किससे कनेक्ट होगा, मशीन से होगा। तो कोई भी ऐसा रिजर्व या प्रोविजन जिसका कनेक्शन किसी एसेट से है, तो ऐसे रिजर्व और प्रोविजन को सिर्फ रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन इनका पेमेंट कभी नहीं किया जाता। ठीक है, सिर्फ ट्रांसफर किया जाता है, पेमेंट लायबिलिटी का होता है। सो आप देखो यहाँ पर ऑल दोस प्रोविजन एंड रिजर्व्स आर टू बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट व्हिच आर कनेक्टेड टू एनी एसेट्स, फॉर इंस्टेंस provision for doubtful debt, investment fluctuation reserve, machinery replacement fund, provision for depreciation. So these are the provisions and reserve which are to be transferred to realization accounts. So how the entry would be? So here the entry would be as, see, just reverse. So बेटा ये liability item होता है, liability side में दिया रहता है, तो you know there are two sides in the balance sheet, one is asset and other one is liability. So if assets always having debit balance, so it means liability always will be credit balance, right? तो assets को ट्रांसफर करने के लिए क्या किया था आपने, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और assets को क्रेडिट। क्यों assets को क्रेडिट किया, क्योंकि एसेट डेबिट होता है इसलिए क्रेडिट करेंगे क्लोज करने के लिए। ठीक उसी तरह लायबिलिटी साइड में जितनी भी चीजें होती हैं ये सब क्रेडिट बैलेंस होती हैं, इनको क्लोज करने के लिए इनको डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे। सो आप देख लो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको मिलेगा, कह रहा है 1 मिनट, यस। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट मैंने कर दिया क्योंकि लायबिलिटी वाला आइटम होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो इसके अगेंस्ट कोई एसेट्स नहीं होता तो इसको जनरली हम ट्रांसफर नहीं करते, लेकिन मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि क्लेम इज देयर। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है कि कुछ क्लेम किया गया, तो जितना क्लेम किया गया है वो अमाउंट और एग्जिस्टिंग रिजर्व जो WCR के नाम से लायबिलिटी में दिया है, दोनों में कंपेयर करेंगे, दोनों में जो कम होगा वो वाला पैसा यहाँ ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अभी हम नोट नीचे लिख देते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और देखो ये सब डेबिट कर दिया तो क्लोज हो गया और ट्रांसफर किसमें करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। सो टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। ये हो गया प्रोविजन और रिजर्व को ट्रांसफर करने की। अब नोट्स भी आप नोट कर लो WCR से रिलेटेड,
if there is claim against WCR, then we transfer existing WCR amount or claim against WCR, whichever is less. मान लो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में WCR 5000 का दिया है और क्लेम 2000 का है, तो सिर्फ 2000 रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अगर WCR 5000 का दिया है और क्लेम हमारा 8000 का है तो पूरा 5000 तक ट्रांसफर करेंगे। दोनों में जो कम होगा, क्लेम और एग्जिस्टिंग रिजर्व दोनों में जिसकी वैल्यू कम होगी वो ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, सो यू शुड टेक द एसेस ऑफ दिस कि कैसे हम प्रोविजन और रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं। डन अनिरुद्ध? यस सर, हो गया। हो गया, सभी का हो गया। ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड, फॉर क्लोजिंग ऑफ लायबिलिटीज। तो देखो बेटा, फॉर क्लोजिंग ऑफ एसेट्स में सबसे पहला एंट्री बताया था रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट्स। सो आप लोग खुद गेस कर सकते हो कि क्लोजिंग ऑफ लायबिलिटीज के लिए क्या होगा। ठीक रिवर्स हो जाएगा, लायबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन, जैसे कि प्रोविजन और रिजर्व का किया। ठीक है, तो लेट अस सी। देखो यहाँ पर आपके सामने एंट्री आई होगी स्क्रीन पे, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। बट सन्ड्री लायबिलिटीज में कौन सा लायबिलिटी लेंगे? जो थर्ड पार्टी को पेबल है, जैसे क्रेडिटर हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हो गया, ठीक है, बिल्स पेबल हो गया, लोन पेबल टू थर्ड पार्टी या लोन पेबल टू अदर देन पार्टनर। ठीक है, इन सारी चीज़ों को डेबिट करेंगे। इवन प्रोविडेंट फंड भी आता है, प्रोविडेंट फंड इज आल्सो अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि ओनली those liabilities which relate to third party, okay, so you should note it, those liabilities which relate to third party and loan other than partners are transferred to realization account, such as creditors, bills payable, bank overdraft, other outside loans, provident fund, outstanding expenses, partners wife loan। देखो इतने सारी चीजें जो सन्ड्री लायबिलिटीज लिखा है ना, उसमें ये सब चीजें जाएंगी। ठीक है, सो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड कि क्या है। सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, लायबिलिटीज क्लोज करने की एंट्री हो गई। तो अब आपने एसेट भी ट्रांसफर कर लिया, लायबिलिटी भी ट्रांसफर कर लिया, प्रोविजन एंड रिजर्व भी ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, और फिक्टिशियस एसेट ट्रांसफर करने की कैपिटल में एंट्री बता दिया मैंने, वो पता था आप लोगों को पहले से भी। सो डन, दिस एसेस हो गया। यस सर। ओके, अब आता है कि पार्टनर्स लोन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। तो कह रहा है कि मैंने बताया ना, सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन बनाते हैं, फिर पार्टनर्स लोन, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर कैश बैंक। तो कह रहा है पार्टनर्स लोन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एंड पेड अप सेपरेटली। देखो अगर किसी पार्टनर के वाइफ ने लोन या पार्टनर के हस्बैंड ने लोन दिया है तब तो रियलाइजेशन में चला जाएगा लायबिलिटीज के साथ, लेकिन खुद पार्टनर ने लोन दिया है तो क्या करेंगे? पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाएंगे और उसका पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के लिए जनरल एंट्री जो होगी वो आप देख लो। तो क्या लिखा है? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, जिस चीज़ से पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो देखो लोन का जो पेमेंट होता है बेटा वो 3 तरीके से हो सकता है। या तो जितने रुपए का लोन है उतने पर पेमेंट किया जाए तो कहते हैं इफ लोन इज पेड एट पार। देखो पार लिखो, पार का मतलब अगर मान लो 20,000 रुपए का लोन था और 20,000 रुपये पेमेंट कर दिया जाए, है ना, 20,000 का लोन था, 20,000 पेड, सो हो गया पार। ठीक है, दूसरा कह रहा है इफ पार्टनर्स लोन इज पेड एट लेस देन एक्चुअल अमाउंट ऑफ लोन। सो कह रहा है पार्टनर्स लोन इज पेड एट लेस देन एक्चुअल अमाउंट ऑफ लोन, द एंट्री वुड बी एज। तो एंट्री कैसे होगी अगर कम पे पेमेंट किया जा रहा है? ध्यान दो, पहले वाले में पार पे था। सो यहाँ क्या कह रहे हैं? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो जितने रुपए का लोन अमाउंट है वो लिखेंगे, टू कैश या बैंक जितना हम पेमेंट कर रहे हैं, पेड अमाउंट। तो आप देखो कि लोन अमाउंट ज़्यादा था और पेमेंट हम कम कर रहे हैं, जैसा कि ऊपर नोटिफिकेशन में मैंने दिया है कि लेस देन एक्चुअल अमाउंट। मान लो अगर हम पेड कम कर रहे हैं तो जो बच गया वो क्या कहलाएगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन पेमेंट ऑफ लोन हो गया ना, तो जो प्रॉफिट आएगा वो चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में।
So got it? Partners loan account debit to cash या बैंक to realization account. Next, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. Done? दीपू? Yes, sir. हाँ Yes, ठीक sir. है. हाँ वेरी गुड. अब ध्यान दो सभी लोग कि कैसे करना है. अब कह रहा है आफ्टर ट्रांसफर ऑफ एसेट, ध्यान से समझना आप. आफ्टर ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट्स विच कैन बी सोल्ड एंड ऑल लायबिलिटीज पेबल टू थर्ड पार्टी वी रियलाइज कैश फ्रॉम सेल ऑफ द एसेट्स एंड पेड ऑफ लायबिलिटीज. तो देखो बेटा, हमने एसेट भी ट्रांसफर कर लिया, लायबिलिटी भी ट्रांसफर कर लिया. तो अब बारी किसकी है? एसेट्स को सेल करने की और पैसा पेमेंट करने का लायबिलिटी. ठीक है, तो एंट्री बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना. सिर्फ जैसा कि मैंने बताया कि ये नॉमिनल अकाउंट है, इनकम में क्रेडिट और एक्सपेंसेस में डेबिट. अगर हम सेल करेंगे एसेट्स को तो पैसा आएगा, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जब पेमेंट करेंगे लायबिलिटी का तो पैसा जाएगा, सो रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक. ठीक है, तो आप ध्यान से समझना इसको. यहाँ पर देखो लिखा है on sale of assets including unrecorded assets for cash. ठीक है, तो जब हम assets बेचेंगे, और including unrecorded का मतलब उन assets को भी जो कि बैलेंस शीट में पहले से नहीं दिया था, डिसोल्यूशन के टाइम, रियलाइजेशन के टाइम पता चला कि ये एसेट्स भी था और इसको भी सेल कर दिया गया. रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है? जो एसेट्स बैलेंस शीट में दिया हुआ है उसे रिकॉर्डेड कहेंगे, जो बैलेंस शीट में नहीं दिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, उसको अनरिकॉर्डेड कहते हैं. ठीक है, सो ऑन सेल ऑफ एसेट्स, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, फॉर कैश, अगर आप कैश में बेच रहे हो तो मतलब नगद बेच रहे हो तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. राइट. ठीक, अगर से मान लो कि कोई एसेट्स किसी पार्टनर ने खुद ले लिया, इफ एनी एसेट टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर, सो आप बताओ कि अगर हम इसे सेल करते तो पैसा आता टू रियलाइजेशन, लेकिन अगर बेचने की बजाय कोई पार्टनर ले लिया तो हम उस पार्टनर का नाम लिख देंगे पैसे की जगह. देखो कैश या बैंक अकाउंट की जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड टू रियलाइजेशन वो एज इट इज रहेगा. ठीक है, सो याद रखना कि कैसे करना है. स्क्रीनशॉट हो गया? Yes, sir. ओके. एंट्रीज फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, तो एसेट्स वाला तो हो ही गया कि बेच दिया, पैसा आ गया. अब पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा. सो देखो आप यहाँ पे ऑन पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, मतलब कि जो रिकॉर्डेड लायबिलिटीज है और अनरिकॉर्डेड सभी का अगर पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा जाएगा. तो क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. राइट. पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज मेड. तो राइट, देखो वही चीज है. अगर से मान लो जैसा कि एसेट के केस में कोई पार्टनर खुद एसेट ले लेता था, तो कैश की जगह पार्टनर आ गया था, बाकी सब कुछ एज इट इज था. ठीक उसी तरह अगर कोई पार्टनर ये कहता है कि पर्टिकुलर लायबिलिटी का वो खुद पेमेंट करेगा, किसी भी एक लायबिलिटी का वो पेमेंट करेगा, सो क्या लिखेंगे हम? देखो रियलाइजेशन पेमेंट के समय भी डेबिट था, यहाँ पर भी डेबिट ही रहेगा, लेकिन जो टू कैश था तो अब कैश नहीं होगा क्योंकि पैसा तो जा नहीं रहा हमारे पास से. तो वो कौन बियर करेगा? पार्टनर्स. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देंगे. ठीक है, तो लायबिलिटी का भी समझ में आ गया. खाली ट्रांसफर करना है तो देखो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करना है. पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करके जितना एसेट दिया सबको क्रेडिट कर दिया, कुछ एसेट्स को छोड़ करके मैंने बता दिया क्या क्या. ठीक इसी तरह लायबिलिटीज को डेबिट करके रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया जो थर्ड पार्टी है, और फिर प्रोविजन और रिजर्व जो कि कनेक्टेड है किसी एसेट से उसको भी डेबिट करके रियलाइजेशन क्रेडिट. तो 3 एंट्री होगी ट्रांसफर की रियलाइजेशन अकाउंट में. चौथी आप पेमेंट सेल करने का कर लिया, कैश डेबिट टू रियलाइजेशन या पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर ले रहा है तो. पेमेंट के केस में रियलाइजेशन डेबिट टू कैश, या अगर कोई पार्टनर कोई लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए कह रहा है तो रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. डन. सो यहाँ तक हो गया. एस इज डन. आई होप कि दिस यू ऑल हैव टेकन. यहाँ तक हो गया.
यस सर। ओके। सो अब देखो बस वही चला है आप लोगों का, बहुत सिंपल है। तो ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेज ऑन रियलाइजेशन, ठीक है, जब रियलाइजेशन देखो, जब फॉर्म बंद होगा तो एसेट्स बिकवाने का काम किसी को सौंपा जाता है ना, तो जिस पर्सन को दिया जाता है उसको कमीशन या कुछ उसको रेम्युनरेशन दिया जाता है, जिसको हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। ये खर्च है तो पैसा जाएगा। सो पेमेंट की एंट्री कैसे होगी, देखो यहाँ कई कंडीशन है। इफ एक्सपेंसेज पेड बाय फर्म तो रियलाइजेशन डेबिट टू कैश, इफ एक्सपेंसेज पेड बाय पार्टनर्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो फर्क क्या है, रियलाइजेशन अपनी जगह है, कैश की जगह पार्टनर हमेशा आ रहा है, याद रखो। अगर पैसे अब लास्ट में कह रहा है कि इफ एक्सपेंसेज पेड बाय पार्टनर विच वुड बी बोर्न बाय पार्टनर पर्सनली, मतलब जो पार्टनर पेमेंट कर रहा है वही पार्टनर खुद उसे बियर करेगा पर्सनली, तो इसके लिए नो एंट्री विल बी पास, तो कोई एंट्री नहीं होगा, क्योंकि वही पेमेंट कर रहा है और वही बियर करेगा, तो फर्म की बुक में एंट्री करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। सो देख लीजिए, अब लास्ट क्लोज करना होगा। आपको पता है जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप ओपन करते हो तो लास्ट में क्लोजिंग एंट्री करते हो, ऐसे रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस बांट करके, ठीक उसी तरह रियलाइजेशन के केस में भी रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज किया जाता है। तो पहले टोटल ऑफ रियलाइजेशन, टोटल ऑफ डेबिट लिखकर कंपेयर कर लेंगे कि कौन ज्यादा है, ठीक है। सो उसके हिसाब से करेंगे, राइट। क्रेडिट बैलेंस एंड रियलाइजेशन अकाउंट, इट मींस प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, अगर क्रेडिट साइड का ज्यादा आ रहा है टोटल तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। सो प्रॉफिट होने पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट बांट देंगे। लेकिन अगर लॉस आएगा यानी डेबिट बैलेंस होगा अगर, सो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन कर देंगे। आपका किस रेशियो में, जो गिवन रेशियो होगा, ओल्ड रेशियो, कोई नया रेशियो या नहीं होता, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है। ठीक है, सो आई होप कि यहाँ पे डन। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, देखो। डन सर। थैंक यू यस सर। आप लोगों को, बहुत अच्छा हुआ। और आई सपोज कि यू विल डू प्रैक्टिस एट होम, ठीक है, इज इट, प्रैक्टिस होगा ना? हाँ सर होगा। Okay.